Today we are going to discuss assertion reason problems. So the first problem is assertion is the deflection in a galvanometer is directly proportional to current passing through it. Reason the coil of galvanometer is suspended in a uniform magnetic field. तो इसमें अगर आप असर्शन को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या स्टेटमेंट दी है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब आपको इसमें पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या जिसे आप रिटार्डिंग टॉर्क कहते हो दैट इज INAB, वेयर आई इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, N is number of turns of coil, A is area of the coil and B is the strength of magnetic field. So अब इसमें if you are considering that coil is placed inside uniform magnetic field तो B magnetic field भी constant हो गया. For a particular galvanometer number of turns and area is constant. It means that C and AB all are constant. So it means that theta is directly proportional to I. So it means that assertion and reason both are true, and moreover reason is the correct explanation of assertion. Now the second problem is if a man with a wristwatch on his hand falls from the top of a tower, its watch gives correct time during free fall. Now reason is the working of wristwatch depends on spring action and has nothing to do with gravity. तो इसमें देखो असर्शन में उसने ये कहा है कि एक पर्सन ने रिस्ट वॉच अपने हाथ पे लगाई है और जब वो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आ रहा है तो ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टाइम में क्यों चेंज नहीं आ रहा उसका रीज़न बताया गया है कि जो वर्किंग है रिस्ट वॉच की दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्प्रिंग एंड इट हैज़ टू नथिंग डू विद ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के ऊपर अगर डिपेंड ही नहीं कर रही तो नेचुरली देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो इसका मतलब इसमें assertion and reason both are true, and moreover reason is the correct explanation of assertion. Now the next problem is environmental damage has increased the amount of ozone in the atmosphere. Reason increase of ozone increases the amount of ultraviolet radiations on earth. अब इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है असर्शन दी है उसमें उसने क्या कहा है कि एनवायरमेंटल डैमेज हैज़ इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ ओजोन, जबकि हम बात क्या करते हैं ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की परत कम हो रही है। तो इसका मतलब इसमें असर्शन जो है वो रॉन्ग है। एनवायरमेंटल डैमेज हैज़ रिड्यूस ओजोन अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, तो असर्शन इज रॉन्ग। और उसके बाद रीज़न में क्या कहा है कि इंक्रीज ऑफ ओजोन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये भी गलत है। रादर क्या होता है ओजोन लेयर प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू रीच ऑन द surface of earth. So it means that in this problem both assertion and reason are wrong. Now the next problem is assertion the temperature coefficient of resistance is positive for metals and negative for p-type semiconductors. और reason क्या है the charge carriers in metals are negatively charged whereas in p-type semiconductors are positively charged. अब इसमें आप assertion में देखिए, assertion में ये कहा गया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। इसका क्या मीनिंग है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। पॉजिटिव मीन्स दैट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स, एंड दैट थिंग इज ट्रू बिकॉज विद राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जब टेम्परेचर राइज करेगा then chances of collisions will increase and due to that value of resistance will increase. Now in case of semiconductors temperature coefficient of resistance is negative
इसका क्या मीनिंग है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद राइज ऑफ टेम्परेचर। और वो क्यों होता है? बिकॉज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ थर्मल एनर्जी, more electrons can jump from valency band to conduction band, and when electron jump from valency band, then hole is created. So that means jumping of electron from valency band to conduction band due to thermal energy, which will overcome the forbidden energy gap, electron hole pair is generated. तो इस तरीके से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे हैं उसका नंबर भी इंक्रीज होगा. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज, सो हेंस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. सो इस केस में असर्शन क्या हो गई? ट्रू हो गई. अब आप देखिए रीज़न में उसने ये कहा कि मेटल्स के केस में चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स हैं, और होल्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है दैट इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्योंकि मैंने आपको असर्शन का जो रीज़न बताया है वो क्या बताया है? चांसेस ऑफ कोलिजन और इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. सो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Now the next problem is assertion n-type semiconductor has large number of free electrons, but it is still electrically neutral. Reason: an n-type semiconductor is obtained by doping an intrinsic semiconductor with a pentavalent impurity. तो इसमें असर्शन में क्या कहा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में वी नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बट इवन देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो दिस इज ट्रू. क्यों ट्रू है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है. एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है जब हम इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं. सो वी आर रिप्लेसिंग एटम विद एटम, एंड यू नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. होता क्या है कि इफ़ आप इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड भी करते हो दैट इज़ टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, 1×10⁻10. दैट मीन्स कि अगर 10⁻10 एटम सिलिकॉन या जर्मीनियम के है तो उसमें आप एक सिंगल एटम पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हो. बट जब वो पेंटावेलेंट एटम फोर्थ ग्रुप एलिमेंट इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मीनियम एटम को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग 4 सिलिकॉन और जर्मीनियम एटम्स, बट 5th इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री. सो ड्यू टू addition of these pentavalent atoms there will be availability of free electrons. ठीक है, but if you say charge on the n-type semiconductor that will be electrically neutral. तो इसका मतलब इस केस में जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है. और अब अभी जैसे हमने कहा कि भाई इसमें ये आए कहाँ से हैं? ये आए हैं जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ऐड कर रहे हो? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करोगे यानी कि 5th ग्रुप एलिमेंट,
तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स एंड 5th इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री which will be there act as the charge carrier. So that means in this case both assertion and reason are true. But in the अगर आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात करते हो so that means that is the correct explanation. So thank you. If you like this video then like it and subscribe the channel.